Hey guys, welcome to my channel Career Solution, an institute of education, where you can join the pillar of success and get ahead of others. So today we are going to discuss a chapter which we have left in the midway for class 10th CBSE Mathematics. The name of chapter is Trigonometry. This is the fourth part of this chapter, a very important topic we are going to cover today, which is trigonometric ratio at complementary angles. Till now we had discussed about the introduction of trigonometry. Okay, the question related to the trigonometric ratio with the help of Pythagoras theorem. Now and after that we had discussed about the trigonometric ratios at a specific angles. Some specific angles we have like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree we had discussed, and what are the values of that trigonometric ratio, all the trigonometric ratio for specific angles that we had already discussed. We had discussed some question of trigonometric ratio at a specific angle also. Today again I am going to start after a long time. So first again we will go through the back side. जैसा कि आप सब जानते हो मैं कोई भी चैप्टर डायरेक्टली पढ़ाना नहीं चालू करता, तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करना और जल्दी करना ताकि हम जल्दी आज कवर कर सकें. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है भाई. तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल. साइड का मेजर करने के लिए, एंगल का मेजर करने के लिए राइट ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जन्म हुआ. क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं किसको है ना? साइड्स ऑफ रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स of a right triangle, any two sides with respect to an acute angle. acute angle के रिस्पेक्ट में ही तो जानोगे ना कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है. तो बस वो चीजें हैं. रेशियो ऑफ साइड्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आफ्टर नोइंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम रिलेशन वी आर नोइंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट I also uploaded the part. So here I am going to solve one question of trigonometric ratio again. Here given is tan theta equals to 4/3. We have given tan theta. Tan is what? Trigonometric ratio, and we are discussing about the trigonometric ratio tan with respect to an acute angle theta. So tan theta equals to 4/3 is so that root over 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equals to 1/3. No problem at all. First we will consider a right triangle. I had told you already. Consider a right triangle with respect to an acute angle. Okay. So we have here we have considered a right triangle ABC. Angle C is theta. So if it is theta, then what is the value of tan? Tan theta is equals to perpendicular upon base, so AB upon BC. So AB upon BC is given to you indirectly. AB upon BC, the value of AB upon BC is given to you, which is 4/3. So AB equals to 4x we can write, and BC equals to 3x because they are ratio. Now applying Pythagoras theorem in the considered triangle ABC. So the hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. You have the value of AB, which is 4x. So 4x square plus 3x whole square. After solving it, 4x square becomes 16x square. 3x square become 3x whole square become 9x square. So somehow you will get AC equals to 25x square. So 25 root over 25 becomes square root of 25 is 5, and x square is x, so 5x. Now you got the value of AC. If I'll ask what is the value of sin theta? So sin theta is what? Perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular over here? What is perpendicular over here? 4x. है ना? And what is hypotenuse? 5x. X and x gonna be cancelled. You will get sin theta as a 4/5. After getting sin theta as a 4/5, take the LHS side of what you have to prove. So you have to prove root over 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. तो उसका LHS side पकड़ लो. रूट ओवर साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो 1 माइनस साइन थीटा 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5. फ्रैक्शन सॉल्व करने को आता है, ये 10वीं कक्षा पहुंच ही गए हो, नहीं जानते हो तो थोड़ा पढ़ो भाई. 5 1 5 minus 4, 5 minus 4 upon 5, 5 plus 4 upon 5, 5 and 5 gonna be cancelled. So in the numerator side you will get 1, and in the denominator side you will get 9. So the square root of 1 is 1, and the square root of 9 is 3. So this somehow you will get what you have to prove in the right hand side of this question. So left hand side is equals to right hand side, that is you have proved this question. After this question I am going to give you some question over here. Please note it down. Then after we will discuss about the one question of trigonometric ratio at specific angle. So some question I am going to give you.
note it down and take a screenshot also. You can take a screenshot also. Here sec theta equals to 5 by 4. What is given to you? Sec theta is equals to 5 by 4. Verify. What you have to verify? Like verify that tan theta upon 1 plus tan square theta is equals to sin theta upon sec theta. ठीक है, sec थीटा दिया है, फिर कंसीडर करो राइट ट्रायंगल, है ना। राइट ट्रायंगल कंसीडर करके उस ट्रायंगल के दो साइड दिए हैं, तीसरे साइड को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करने का tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, जानते हो। sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और sec क्या होता है भाई? sec क्या होता है? cos का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सारा का वैल्यू निकालो, LHS साइड सॉल्व करो, यू गेट 1 रेशियो। RHS साइड सॉल्व करो, यू गेट 1 रेशियो, एंड यू विल फील कि जो रेशियो है वो सेम है। ठीक है जी, आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन, cot बीटा is equals to 12 upon 5. Cot B equals to 12 upon 5. Sorry, beta नहीं. You have to prove that tan square B minus sin square B is equals to tan square B into sin square B. And as I know, अब आपको समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई आपको प्रैक्टिस के लिए। tan theta is equals to 20 upon 21, है ना। You have to show that 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta is equals to 3 by 7. Note it down the question very fast please, or take a screenshot. So these are some question of trigonometric ratio, है ना, with respect to Pythagoras theorem. अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ही हैं, बट with respect to specific angle we are going to discuss. स्पेसिफिक एंगल के रिस्पेक्ट में we will talk. पहले तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Here one question, evaluate मतलब क्या भाई? नॉर्मल हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है sin 60 into cos 30, sin 60 into cos 30 minus cos 60 into sin 30. ओके, sin 60 चलो सॉल्व करते हैं। sin 60 की वैल्यू √3/2 into cos 30 की वैल्यू वो भी √3/2 आपको पता है, माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। बोर्ड मास क्या कहता है? फर्स्ट सॉल्व, पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, देन आफ्टर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो √3 3 and 2 2 जा 4, minus 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 and 4 LCM become 4, it will become 3 minus 1, 3 minus 1 become 2/4 and 2/4 become 1/2। हो गया सॉल्व। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं भाई, है ही नहीं कुछ, फालतू का हुआ बना के रखे हैं लोग। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं भैया, ट्रिग्नोमेट्री। मेरी बात मानो, बस तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, हिम्मत करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूँ। cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60। ठीक है, cos स्क्वायर 30 से आप क्या समझते हो? cos 30 का होल स्क्वायर। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी ना, cos 30 का होल स्क्वायर लिखा है, cos स्क्वायर 30 लिखे, एक ही बात है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? जल्दी बोलिए, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है। √3/2 का होल स्क्वायर प्लस sin 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? सोचो जल्दी, tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3, है ना, मुझे याद है इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं डायरेक्ट। √3 का होल स्क्वायर, √3 ना, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/3 into √3 का स्क्वायर 3, 3 and 3 गोना भी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा? 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1। सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई? 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 into 3 3,
प्लस का साइन है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 4 जा 4, 1 4 into 1 4, तो 3 और 2 5, 5 minus 4, 5 minus 4 upon 4, 5 minus 4 become 1, 1 by 4, लो हो गया आंसर। बहुत ही आसान, एकदम सरल सा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम गोइंग टू गिव यू सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बोला था कि और क्वेश्चन दूंगा। अब ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने 4 और क्वेश्चन दिया और 4 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये चारों क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, sec स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60। sec स्क्वायर 45 सब समझ लो, sec 45 का होल स्क्वायर। sec 45 की वैल्यू तुमको पता है, cos 30 की वैल्यू पता है, tan 60 की वैल्यू पता है। सारे वैल्यू को पुट करो, उसका स्क्वायर करो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन 4 into 45, cot 45 की वैल्यू into 4 कर देना। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन एंड देन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा को 30 मानना है और प्रूफ करना है tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, tan 2 थीटा मतलब tan 2 into 30, 2 into 30 मतलब 60, tan 60 की वैल्यू √3, लेफ्ट हैंड साइड में √3 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में 2 into tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर। एक फ्रैक्शन बनेगा, उसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड में भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आई हैड गिवन यू फॉर व्हाट, फॉर प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, है ना। तो टिल नाउ आई हैड गिवन यू क्वेश्चन ऑफ 2 टॉपिक्स, वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो and the question is solved by with the help of Pythagoras theorem. Second is trigonometric ratios at specific angle. Trigonometric ratios at specific angle का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए बन सके तो इसको जरूर बनाइएगा। और मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। sin a plus b equals to 1, it is given to you. What is given to you? sin a plus b equals to 1 and cos a minus b is also equals to 1, where the sum of a plus b is greater than 0 and less than 90 degree। मतलब 0 से 90 के बीच में a और b दो एंगल है जिनका सम ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 है। अगर a प्लस b का सम ही 90 से ग्रेटर नहीं है तो उनका डिफरेंस तो 90 से ग्रेटर कभी होगा ही नहीं, तो उधर भी जाने का मतलब नहीं है। कुल मिला के a और b जो है इनका सम और डिफरेंस 0 से 90 डिग्री के बीच में है। 0 से 90 डिग्री के बीच में है मतलब स्पेसिफिक एंगल का ही होगा कुछ। देखते हैं बना के, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल a एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल b, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, जो दिया आप उसमें फॉलो करो। पहला इक्वेशन देखते हैं, sin a plus b equals to what, 1। sin में 1 किसकी वैल्यू होती है, sin 90 की वैल्यू, मतलब sin a plus b is equals to हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री। अगर इक्वल का साइन लगा है इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस b एक एंगल है ना, जिसका सम कितना हुआ 90 डिग्री हो गई। ये हो गई इक्वेशन 1, समझ में आ रहा है ना। sin a प्लस b इक्वल्स टू sin 90, मतलब sin a प्लस b जो है वही sin 90 है ना, sin a प्लस b वही है sin 90 है। तो ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में a प्लस b के, और ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, एंगल 90 के। मतलब कुल मिला के a प्लस b का जो मेजर है वो 90 डिग्री के इक्वल है। साइन साइन दोनों तरफ से रिमूव हो गया। सिमिलरली फिर जो दूसरा दिया उसको देखो, cos a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। अब cos में 1 किसका वैल्यू होता है भाई, तो cos a माइनस b इक्वल्स टू cos 0 डिग्री। आप सबको पता है कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर दोनों तरफ से cos हट जाएगा तो a माइनस b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। नाउ यू हैव 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल। सॉल्व किए ऐसे क्वेश्चन, 8th में भी सॉल्व किया, 9th में भी। नाउ यू हैव a plus b as a 90 and a minus b as a 0। आप कुछ मत करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, और आइदर यू कैन सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहीं भी एक इक्वेशन से a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b निकालो और दूसरे वाले इक्वेशन में रख दो, या b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकालो और दूसरे वाले इक्वेशन में रख दो। समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहाँ नॉर्मली
जो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, आप पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। लाइक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो देखना अपने आप एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। a प्लस बी इक्वल्स टू 90 और a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ऐड करना है, कोई साइन चेंज होगा नहीं। b and b गोना भी कैंसिल, वन इज हैविंग पॉजिटिव एंड अदर इज हैविंग नेगेटिव विद द सेम कोएफिशिएंट, सो इट विल कैंसिल आउट। a and a become 2a and 90 plus 0 become 90, so a is equals to 90 upon 2. 2 is in multiply this side, no, so it will go to the other side, so 90 upon 2 become 45 degree. Now put the value of a in equation number what, in equation number 1 और 2 किसी में भी 1 में पुट कर देते हैं, तो a plus b equals to 90, a plus b equals to 90। a की वैल्यू कितनी है 45, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 45, उधर ट्रांसफर होगा तो 90 माइनस 45 45। समहाउ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, a और b दोनों का मेजर सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक है, a और b दोनों का मेजर सेम आ रहा है 45 45 डिग्री। क्लियर है सबको? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के दो क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। समझना है, कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सर यहाँ पे ये चीजें नहीं समझ में आई, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब मैं दो क्वेश्चन आपको इस पैटर्न के दे रहा हूँ, आप घर में उसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करके देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3 बाई 2। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, cos में √3 बाई 2 की कितने एंगल की वैल्यू होती है, उस हिसाब से a प्लस बी, a माइनस बी पता चल जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे भी वही है कि a प्लस बी का सम 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, बस दो ही क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल का समापन है भाई। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक बात है, और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई √3। तो tan में एक बार √3 किसकी वैल्यू होती है वो देख लो, a प्लस बी मिल जाएगा। tan में एक बार 1 बाई √3 किसकी वैल्यू होती है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। कुछ नहीं है, सड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ अगेन वेट फॉर अ व्हाइल, विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Okay, so this is the last topic of today's class, trigonometric ratio at complementary angles। complementary angle के लिए trigonometric ratios की वैल्यू क्या होती है ना, क्या रिलेशनशिप है trigonometric ratio का आपस में complementary angles के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो फिर वहीं से आता है कि complementary angle क्या है, the sum of any two angles, if the sum of any two angle is 90 degree then both the angles are said to be complementary angle with each other, है ना। तो सपोज आई एम कंसीडरिंग अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, सो एंगल ए एंड एंगल सी, इफ दिस एंगल बी इज 90 डिग्री देन डेफिनेटली द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी वुड बी 90 डिग्री। मैं पहले भी बता चुका हूं, ए और सी का सम 90 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं एंगल सी का मेजर थीटा मान लेता हूं, सपोज मैं मान लेता हूं कि थीटा है, कोई भी एक एंगल मेजर कर लेता हूं, तो इन दोनों का सम अगर 90 है तो 90 में से थीटा घटा दूं तो एंगल ए मिल जाएगा। तो एंगल ए का सम कितना होगा, एंगल ए का मेजर क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो इफ आई एम कंसीडरिंग एंगल सी एज अ थीटा देन डेफिनेटली एंगल ए वुड बी 90 माइनस थीटा। देखना ध्यान से समझना। अब अगर मैं कहता हूं कि आप मेरे को sin 90 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ, sin 90 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, I am talking about the trigonometric ratio sin with respect to an acute angle A, जिसका मेजर कितना है 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर होगा क्या, BC होगा ना, BC 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में BC वुड बी परपेंडिकुलर एंड AC वुड बी हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये देखो BC अपॉन AC जो है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो BC अपॉन AC थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में BC क्या है, बेस है, और AC क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC जो होगा उसको हम cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या समझ में आया कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ठीक, अब और आगे आते हैं। अब मैं बोल रहा हूं cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू बताओ,
cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल A whose measure is 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC। अब AB अपॉन AC एक रेशियो है, थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा रेशियो है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? AB अपॉन AC। थीटा के रिस्पेक्ट में AB क्या है? परपेंडिकुलर। AC क्या है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा भी कह सकते हैं, या साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा या cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा कह सकते हैं। इलस्ट्रेशन समझो। अब देखते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या? फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan with respect to an acute angle A whose measure is 90 minus theta। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 90 माइनस थीटा के लिए BC परपेंडिकुलर और AB बेस, तो BC अपॉन AB। अब अगर थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें तो BC क्या हो जाएगा? बेस, और AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है भाई? cot। तो tan 90 minus theta equals to cot theta, और cot theta equals to tan 90 minus theta। सिमिलरली cot 90 minus theta क्या होगा भाई? cot 90 minus theta जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? tan theta। हम प्रूफ कर सकते हैं। cosec 90 minus theta sec theta, sec 90 minus theta cosec theta। और तुमको एक चीज और याद दिलाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दो, देखना। जिस दिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल बात कर रहे थे तो कई बार मैं पलट रहा था, याद होगा कि देखो इसको उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिख दो। उल्टा लिख रहे थे क्यों? यही रीजन है भाई उल्टा के पीछे। थोड़ा सा ध्यान दो। अब sin 30 और sin cos 60, 30 और 60 एंगल कितना हुआ? टोटल सम कितना हुआ? 90 हो रहा है। तो sin 30 का जो वैल्यू है वही cos 60 का वैल्यू। कैसे? sin 30 को और क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 60 लिख सकते हो। 90 माइनस 60 क्या होगा? 30 होगा। तो sin 90 माइनस 60 बिकम cos 60। तो जो sin 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 मतलब क्या? 30 डिग्री। तो जो sin 30 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू है। ठीक है, जो cos 30 की वैल्यू है sin 30 60 की वैल्यू है। तो sin और cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है। sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 minus theta equals to cot theta, cot 90 minus theta equals to tan theta। Similarly, cosec 90 minus theta equals to sec theta, sec 90 minus theta equals to cosec theta। Okay, again I am taking a break. After that, I will solve some question of trigonometric ratio at complementary angles. Okay, students. So these are some question of trigonometric ratio at complementary angle, and today's last topic it is sin 18 upon cos 72 degree। अब देखो 18 कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, 72 भी कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, पर क्या कोई रिलेशन है क्या 72 डिग्री और 18 डिग्री में? ध्यान से देखो, 72 और 18 का सम करो तो भाई 72 प्लस 18 बिकम 90, 72 18 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो थोड़ा देखते जाओ। sin 18, चलो मैं sin 18 को 18 ही छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं। cos 72 को क्या मैं मैंने cos को cos ही लिखा है, 72 को क्या मैं 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ, 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ। तुम सब कहोगे हाँ ठीक है भाई, 90 माइनस 18 भी तो बात करिए ना। तो ये हो गया sin 18 अपॉन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? जल्दी बोलो। cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है? 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 18 डिग्री। sin 18 अपॉन sin 18 कैंसिल आउट, यू विल गेट आंसर इज 1। सॉल्व हो गया? हो गया सॉल्व। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52। cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52। फिर कोई भी स्पेसिफिक एंगल नहीं है भैया, पर क्या कोई रिलेशन है? तो आपने पाया हाँ, 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। द सम ऑफ 38 प्लस 52 बिकम 90। फिर खेल खेलते हैं, या तो इस सबको 52 में कन्वर्ट कर दो या तो 38 में। तो देखते जाओ, cos 38 को क्या मैं 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया, cos को cos ही लिखा है, 38 को 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ क्या? आप बोले हाँ। इनटू cos 52 माइनस sin 38 को मैं sin 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ क्या? कहीं एक तरफ से चेंज करो, या तो 52 में कन्वर्ट करो या तो 38 में। तो sin 38 को मैं sin 90 माइनस 58 लिख सकता हूँ, 52 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख दिए। इनटू sin 52, अच्छी बात है। अब cos 90 माइनस 52 क्या होता है?
साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 बिकम cos 52 इंटू साइन 52। देखो साइन 52 इंटू कॉस 52, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, कोई भी वैल्यू होगा, इन दोनों का वैल्यू, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू का क्या मल्टीप्लिकेशन है, और जो यहाँ लिखा वही तो इधर भी लिखा, सेम चीज है। तो इन दोनों का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस फिर उसी चीज का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर सेम आएगा। सब्सट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आना है, 0। मिल गया। नेक्स्ट देखें, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब देखो कहानी, 48 का रिलेशन किसके साथ है, 42 के साथ है। 48 और 42 क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। 23 और 67 है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर खेलते हैं, tan 48 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस 42 इंटू tan 23 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 67। मैं tan को 10 ही लिखा हूं, 23 को 90 माइनस 67 लिख दिया। tan 42, ये एक बार अगर उधर मैं 42 में आया तो इसको थोड़ी ना 48 में ले जाऊंगा, एक तरफ से चलते हैं ना। तो tan 42 इंटू tan 67। नाउ tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot 42 इंटू ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 67 cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। cot 42 इंटू tan 42, cot थीटा, थीटा सेम है ना, 42 42, तो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1। फिर cot थीटा इंटू tan थीटा, इस इन दोनों के लिए भी थीटा सेम है, तो उनका भी आंसर क्या होगा, 1 1 जा 1। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास बच्चा लोग। 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। When we upload my next video, whenever I will upload my next video, definitely I will give you more question for solving of the question or related to trigonometric ratio and complementary angle. And thank you so much for liking my videos and giving me so much motivation to uploading more and more video for you all. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon. Thank you class.